خون، معصوموں کا خون اور بارود کی وہ بدبو جس نے آج ہمارے قبلہ اول کی فضاؤں کو گھیر رکھا ہے۔ تصور کیجئے جس مسجد اقصیٰ کے صحن کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھوں سے عرق گلاب سے دھویا تھا، آج اسی صحن میں نمازیوں کے بہتے ہوئے خون سے وضو کیوں کیا جا رہا ہے؟ جو مائیں کل تک اپنے بچوں کو لوریاں سنا کر سلاتی تھیں، آج وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو چھوٹے چھوٹے سفید کفن کیوں پہنا رہی ہیں؟ جو بچے کل تک گلیوں میں کھیلتے تھے، آج وہ اپنے بازوؤں پر قلم سے اپنا ہی نام کیوں لکھ رہے ہیں، تاکہ اگر بمباری میں ان کے چہرے مسخ ہو جائیں تو کم از کم ان کی لاشوں کی پہچان تو ہو سکے۔ یہ کسی ڈرامائی فلم کا کوئی منظر نہیں ہے، یہ آج کا غزہ ہے، یہ آج کا فلسطین ہے۔ میرے تاریخ کے متلاشی دوستو، آج کی یہ دستاویزی فلم کوئی عام فلم نہیں، یہ اصل ہے۔ آج ہم اپنے اس تاریخی سفر کی تیسری، آخری اور سب سے سنسنی خیز قسط میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک شیطانی سازش نے مسلمانوں کی پیٹھ میں ایک ایسا خنجر گھونپا جس کا زخم آج تک رس رہا ہے، کیسے ایک کاغذ کے ٹکڑے نے لاکھوں انسانوں کو بے گھر کر دیا، اور کیسے دنیا کا سب سے بڑا ناسور اسرائیل ہمارے قبلہ اول کے سینے پر لا کر بٹھا دیا گیا۔ دل تھام لیجئے، اپنی سانسیں قابو میں رکھیے اور پردے سے نظریں مت ہٹائیے گا، کیونکہ آج کی یہ تلخ حقائق آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گے اور آپ کا خون کھول اٹھے گا۔ میں ہوں آپ کا میزبان، اور آج ہم تاریخ کے ان تاریک ترین تہہ خانوں کا دروازہ توڑنے والے ہیں جہاں سے اس عظیم بربادی کا خونی کھیل شروع ہوا تھا۔ میرے تاریخ کے متلاشی دوستو، پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو دھول چٹا کر قبلہ اول کو آزاد کروایا تھا۔ اس کے بعد صدیوں تک عظیم خلافت عثمانیہ کے سائے میں فلسطین امن کا گہوارہ بنا رہا۔ مسلمان، عیسائی اور یہودی انتہائی سکون سے ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ 400 سال تک وہاں کسی قسم کا ایک قطرہ خون نہیں بہا، لیکن 19ویں صدی کے آخر میں یورپ کے بند کمروں میں ایک ایسی بھیانک سازش جنم لے رہی تھی جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دی۔ یورپ میں یہودیوں کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ اسی دوران ایک یہودی صحافی جس کا نام تھیوڈور تھا، اس نے ایک خطرناک نظریہ پیش کیا جسے تاریخ میں صہیونیت کہا جاتا ہے۔ 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں اس شخص نے دنیا بھر کے امیر ترین یہودیوں کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ ہمیں یہودیوں کے لیے اپنا ایک الگ ملک چاہیے، اور وہ ملک صرف اور صرف فلسطین کی مقدس سرزمین پر بنے گا۔ لیکن ایک بہت بڑی دیوار ان کے راستے میں کھڑی تھی۔ اس وقت فلسطین پر مسلمانوں کے خلیفہ ببر شیر سلطان عبدالحمید ثانی کی حکومت تھی۔ یہودیوں کے وفد نے سلطان کو ایک ایسا لالچ دیا جس سے کسی بھی عام بادشاہ کا ایمان ڈگمگا سکتا تھا۔ انہوں نے پیشکش کی کہ سلطان، خلافت عثمانیہ پر یورپ کا بہت بڑا قرضہ ہے، آپ ہمیں صرف فلسطین میں زمین خریدنے اور بسنے کی اجازت دے دیں، ہم خلافت کا سارا قرضہ اتار دیں گے اور سونے کے پہاڑ آپ کے قدموں میں بچھا دیں گے۔ لیکن ذرا دل مضبوط کر کے سنیے گا، مشہور عالم دین اور تاریخ دان ڈاکٹر علی محمد صلابی اپنی مستند کتاب دولت عثمانیہ میں لکھتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید ثانی نے اس پیشکش پر وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں سنہری حروف سے
चमक रहा है। सुल्तान ने गजबनाक होकर गरजते हुए कहा, हर्तजल से कह दो कि वो अपना सोना अपनी जेब में रखे। मैं फलस्तीन की मट्टी का 1 इंच भी नहीं बेच सकता। ये ज़मीन मेरी ज़ाती जागीर नहीं, ये उम्मते मुसलमा की अमानत है जिसे हमारे मुजाहिदीन ने अपने खून से खरीदा है। तुम मेरे जिस्म के टुकड़े तो कर सकते हो, लेकिन जीते जी फलस्तीन मुझसे नहीं छीन सकते। अल्लाह अकबर। ये था एक सच्चे खलीफा का शाहकार फैसला। जब तक सुल्तान ताकत में रहे, यहूदियों का ये नापाक ख्वाब अधूरा ही रहा। लेकिन फिर सिहूनियों ने वो घिनौना खेल खेला जिसने उम्मत की कमर तोड़ दी। पहली जंग अजीम छिड़ गई। अंग्रेज़ों ने एक मशहूर बरतानवी जासूस लॉरेंस ऑफ अरेबिया के जरिए अरबों के दिलों में लालच का जहर घोला और उन्हें अपने ही तुर्क मुसलमान भाइयों के खिलाफ बगावत पर उकसा दिया। अपनों ही की गद्दारियों ने वो काम कर दिखाया जो दुश्मन की तोपें ना कर सकी। खिलाफत उस्मानिया टूट गई। 11 दिसंबर 1917 तारीख का वो स्याह दिन जब बरतानवी जनरल एडमंड एलन फाते की हैसियत से यरूशलेम में दाखिल हुआ, और जानते हैं उसने बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पर खड़े होकर क्या तकब्बर भरा जुमला कहा था। उसने कहा कि आज सलीबी जंगें ख़त्म हो गई हैं, यानी जो बदला वो सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह से मैदान जंग में ना ले सके थे, वो उन्होंने मुसलमानों को आपस में लड़ा कर ले लिया। और उस कब्जे के साथ ही शुरू हुआ तारीख का सबसे बड़ा धोखा, एक ऐसी डकैती जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। 2 नवंबर 1917, जिसे दुनिया बिल फूर के नाम से जानती है, बरतानिया के वजीर खारजा आर्थर बलफूर ने यहूदियों के एक बहुत बड़े साहूकार लॉर्ड रूथस चाइल्ड को एक खत लिखा। उस खत में बरतानिया ने वादा किया कि वो फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक कौमी वतन बनाकर देगा। मेरे तारीख के मुतलाशी दोस्तों, ज़रा इस नाइंसाफ़ी को आम फहम ज़बान में समझने की कोशिश करते हैं। मशहूर यहूदी लिखारी आर्थर अपनी तारीखी किताब वादा और तकमील में इस वाक़े पर हैरत का इज़हार करते हुए लिखता है कि एक ऐसी कौम ने दूसरी कौम से ये वादा कर लिया कि वो उन्हें तीसरी कौम का मुल्क तोहफे में दे देगा। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई अजनबी आपके घर में घुसे और कब्जा कर ले और आपका घर आपसे पूछे बगैर किसी और के नाम कर दे। उसके बाद हिटलर के जुल्म का बहाना बनाकर और बरतानवी फौज की बंदूकों के साए में बहरी जहाज भर भर कर यूरोप से यहूदी पनाहगज़ीनों को फ़लस्तीन लाया जाएगा। और लाया गया। फ़लस्तीन के भोले और रहमदिल मुसलमानों ने मजलूम समझकर गले लगाया, उन्हें पनाह दी। उन्हें क्या मालूम था कि वो अपनी आस्तीनों में सांप पाल रहे हैं। जैसे जैसे यहूदियों की तादाद बढ़ी, उन्होंने हगाना और इरगोन जैसी खूनख्वार दहशतगर्द तंजीमें बना ली। बरतानिया ने फ़लस्तीन को बिल्कुल नहत्ता कर दिया। अगर किसी घर से चाकू भी मिलता तो उसे फांसी दे दी जाती, जबकि यहूदियों को जदीद तरीन टैंक और खुदकार बंदूकें दी गईं। और फिर 1948 का वो खूनी साल आया। 14 मई 1948 को बरतानिया ने बड़ी मकारी फ़लस्तीन खाली किया और उसी रात यहूदियों ने फ़लस्तीन की सरजमीन पर एक ऐसा गासिब और नाजायज़ रियासत इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। अगले ही दिन 15 मई को जो कहर बरपा हुआ, उसे फ़लस्तीन आज तक अजीम तबाही के नाम से जानते हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि मशहूर इसराइली तारीखदान इलान पापे ने खुद अपनी तहलका खेज किताब फ़लस्तीन की नस्ली ततहीर में इतराफ़ किया है कि इसराइल दहशतगर्दों ने 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी गांव जलाकर खाकस्तर कर दिए। उसी किताब के मुताबिक दीर यासीन नामी गांव के कत्ले आम का वाक़या पढ़े तो आज भी रूह कांप उठती है। रात के अंधेरे में उन
सिहूनी दरिंदों ने सोते हुए लोगों पर हमला किया। हामला औरतों के पेट चाक कर दिए गए और मासूम बच्चों को दीवारों के साथ खड़ा कर गोलियों से भून दिया गया। खौफ और दहशत का ऐसा तूफान बर्पा किया गया कि 7.5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी अपना घर बार, अपनी ज़मीनें, अपने फलदार बागात छोड़कर रातों रात दर बदर हिजरत करने पर मजबूर हो गए। वो रोते हुए बस अपने घरों को ताले लगाकर उनकी चाबियां अपने गलों में लटका कर निकले थे, ये सोचकर कि हालात ठीक होंगे तो हम चंद दिनों में वापस आएंगे। लेकिन मेरे तारीख के मुतलाशी दोस्तों, 76 साल गुजर गए। वो दादा परदादा तो हिजरत के खैमों में मर गए, लेकिन उन घरों की जंग आलूद चाबियां आज भी उनके पोतों के पास महफूज हैं, जबकि उनके घरों पर गासिब सिहूनियों का कब्जा है। और जुल्म की ये दास्तान यहाँ ख़त्म नहीं हुई। फिर 1968 की 6 रोज़ा जंग मुसल्लत की गई। अरब ममालिक की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर इसराइल ने मशरक़ी यरूशलेम और हमारे किबला अव्वल मस्जिद अक्सा पर भी मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया। सलीबियों के बाद एक बार फिर हमारा मुक़द्दस हरम दुश्मनों के नापाक बूटों तले आ गया। इसराइली कमांडर मूसे दायान फातिहाना अंदाज में मस्जिद अक्सा के अहाते में आया और दीवार किरिया के पास खड़े होकर तकब्बर से बोला कि आज हमने खैबर का बदला ले लिया है। मेरे तारीख के मुतलाशी दोस्तों, ज़रा अपना दिल मजबूत कीजिए, क्योंकि अब जो वाक़या मैं बताने जा रहा हूँ वो हर मुसलमान के सीने पर एक कारी ज़ख्म है। 21 अगस्त 1969 एक यहूदी इंतहा पसंद ने मस्जिद अक्सा के अंदर घुसकर आग लगा दी। आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे, और जानते हैं उस आग में क्या जला? पिछली किस्त में हमने जिक्र किया था ना, वो अजीम शान लकड़ी का खूबसूरत मिंबर जिसे नूरुद्दीन जंगी ने अपने हाथों से बनवाया था और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उसे अपने साथ फतह के बाद मस्जिद अक्सा लाए थे। वो 800 साल पुराना अजीम तारीखी मिंबर उस आग में जलकर कोयला हो गया। उस रात इसराइल की उस वक़्त की वज़ीर आज़म गोल्डा मेयर को खौफ के मारे नींद नहीं आई। वो अपनी स्वाने उम्री जिसका नाम मेरी ज़िंदगी है उसमें खुद लिखती है कि उस रात मुझे लगा कि कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो दुनिया भर के मुसलमान चारों तरफ से इसराइल पर टूट पड़ेंगे और हमें सफ़ाए हस्ती से मिटा दे। लेकिन फिर वो एक ऐसा जुमला लिखती है जो आज भी उम्मते मुसलमा के मुंह पर जोरदार तमाचा है। उसने कहा कि जब सुबह हुई और मैंने देखा कि अरब और मुसलमान तो बिल्कुल खामोश हैं, तो मुझे यकीन हो गया कि अब हम इनके साथ जो चाहें कर सकते हैं। कोई मुसलमान अब एक मुर्दा कौम बन चुके हैं। अल्लाह अकबर! क्या वाकई हम मुर्दा हो चुके हैं? आज गज़ा के हालात देखिए, वही तारीख आज फिर दोहराई जा रही है। गज़ा जिसे दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल बना दिया गया है, जहां 22 लाख इंसानों को दीवारों में कैद कर रखा है, जहां का पानी बंद है, खुराक बंद है, दवाइयां बंद हैं और आसमान से जदीद तरीन जंगी त्यारे हर रोज़ मौत बरसा रहे हैं। अस्पतालों पर एक एक टन के बम गिराए जा रहे हैं। नौज़ायदा बच्चों को तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है। पनाह गज़ीनों के खैमों को जिंदा जला दिया गया है। एक बाप प्लास्टिक के थैले में अपने बच्चे के जिस्म के टुकड़े जमा करके दुनिया से पूछ रहा है कि मेरे बच्चे का क्या कसूर था। दुनिया भर के इंसानी हकूक़ के ठेकेदार इक़वाम मुत्तहिदा सब अंधे गूंगे और बहरे हो चुके हैं। उन्हें कुत्तों और बिल्लियों के हकूक़ याद है, लेकिन कटते हुए मुसलमान बच्चे नज़र नहीं आते। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि दुनिया भर के 57 से ज़ायद इस्लामी मालिक जिनके पास
अरबों डॉलर के तेल के ज़खायर हैं, लाखों के जदीद फौजी हैं, अरबों डॉलर का असला है, सब का सब जंग खा रहा है। हुक्मरान अपनी कुर्सियां बचाने के लिए खामोश तमाशाई बने हुए हैं। लेकिन मेरे तारीख के मुतलाशी दोस्तों, मायूस मत होना। ज़रा गज़ा के उन भूखे प्यासे और नहत्ते मुसलमानों की तरफ तो देखिए। उनका घर मलबा बन चुका है, लेकिन जब वो अपने मरे हुए बच्चों को उठाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू ज़रूर होते हैं, मगर ज़बान पर नाशुक्री नहीं होती। वो आसमान की तरफ देख कर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। उनके पास टैंक नहीं है, लेकिन उनके पास वो ईमान है जो टैंकों का लोहा पिघला देता है। वो तन्हा नहीं लड़ रहे, वो तो पूरी उम्मते मुसलमा की तरफ से किबला अव्वल की हिफाजत का फर्ज अदा कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया को बता दिया है कि तुम हमारे जिस्मों के टुकड़े तो कर सकते हो, लेकिन हमारे दिलों से मस्जिद अक्सा की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। याद रखिए, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। रात कितनी ही तवील क्यों ना हो, सहर होकर रहती है। तारीख गवाह है, फ़िरौन का गुरूर पानी में डूबा, नमरूद को मच्छर ने मारा, सलीबियों का तकब्बर 88 साल बाद खाक में मिला, तो ये जदीद सेहूनी फ़िरौन भी तारीख के कूड़ेदान में इंशाअल्लाह गर्क होंगे। इंशाअल्लाह मस्जिद अक्सा कल भी हमारी थी, आज भी हमारी है और कल भी हमारी ही रहेगी। लेकिन मेरे दोस्तों, सोचने की बात ये है कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह हमसे पूछेगा कि जब मेरा घर और मेरे बंदे जल रहे थे तो तुमने क्या किया, तो क्या हमारे पास कोई जवाब होगा? क्या हम सिर्फ मोबाइल पर मंजर देखकर आगे गुजर जाएंगे? आज हम कम अज कम उन जालिमों की मसनूआत का बाइकाट तो कर ही सकते हैं। अपनी आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को फ़लस्तीन की ये सच्ची तारीख तो बता सकते हैं। ये सिर्फ एक दस्तावेजी फिल्म नहीं है, ये हमारा एहतजाज है। ये सोई हुई उम्मत को जगाने की एक अदना सी कोशिश है। अगर आज के इन तल्ख़ हक़ाइक़ ने आपके दिल पर एक दस्तक दी है, अगर आपका खून खौला है, तो इसे अपने तक मत रुकने दीजिएगा। इसे आग की तरह फैला दें, हर जगह उसे आगे पहुंचाएं, ताकि कोई मुसलमान अपनी तारीख से गाफिल ना रहे। मेरी तीनों एक साथ गज़ा पर हैं। तबसरों में आज एक तूफ़ान आना चाहिए। अपना जज्बा दिखाएं और पूरे यकीन से लिखें, लब्बैक या अक्सा और आज़ाद फ़लस्तीन, ताकि बातिल को पता चले कि मुसलमान मरा नहीं है, अभी ज़िंदा है। हमारी दस्तावेज़ी सीरीज़ का ये सफ़र यहाँ मुकम्मल होता है, लेकिन हक़ और बातिल की ये जंग आज भी जारी है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अगर मुझसे कमी कुताई या कोई गलती हो गई हो तो मैं अल्लाह के हजूर भी माफ़ी का तलबगार हूँ और आप दोस्तों से भी माफ़ी का तलबगार हूँ। बहुत शुक्रिया।